Hello students. Okay, so we were doing interchange of degrees, interchange of parts of speech. Okay, and yesterday we had done till placement and position of adjectives and adverbs. Okay, sentence में adjectives और adverbs का placement कैसा रहता है, कैसे position में रहता है, हम लोगों ने यहाँ तक किया था. Okay, how is a determiner placed या positioned एक sentence में. Okay, फिजिकल डिस्क्रिप्शन कैसी दी जाती है, ओरिजिन, मटेरियल, क्वालिफायर, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था. ओके, टुडे वील बिगिन विथ कॉमास विथ मल्टीपल एडजेक्टिव्स. ओके, व्हेन इज अ कॉमा यूज्ड? अ कॉमा इज यूज्ड बिटवीन टू एडजेक्टिव्स ओनली इफ द एडजेक्टिव्स बिलोंग टू द सेम कैटेगरी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, if there are two adjectives describing color or two adjectives describing material. Okay, like अगर एक ही कैटेगरी को बिलोंग करता है दोनों एडजेक्टिव्स, देन ओनली दो एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में. टू टेस्ट दिस आस्क दीज टू क्वेश्चंस. एंड टू टेस्ट दिस दो क्वेश्चन है जो हम लोग के माइंड में आता है, जहन में आता है. कौन से दो क्वेश्चन है वो? फर्स्ट, डज द सेंटेंस मेक सेंस इफ द एडजेक्टिव्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर? And the next question comes in mind is, does the sentence make sense if the word and is written between them? Okay, these two questions come in mind. If the answer is yes to the above questions, the adjectives are separated with a comma. अगर दो adjective है एक ही sentence में, तो how do we separate them? We separate them with a comma. Also keep in mind, a comma is never used before the noun that it modifies. वन मोर थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कॉमा जो है वो ऐसे नाउन के पहले बिल्कुल यूज नहीं होता है जो मॉडिफाई करता है. ओके, नेक्स्ट इज डिटेल रूल्स फॉर द पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स. ओके, पोजिशन जो है एडवर्ब्स का, उसके लिए कुछ डिटेल रूल्स हम लोग कर लेते हैं. फर्स्ट इज, adverbs that modify the whole sentence can move to different positions such as certainly, recently, fortunately, actually and obviously. Okay, position कई बार ऐसा होता है कि adverb का change करके हम लोग sentence में place करते हैं. जैसे for example, एक sentence है, recently I started a new job. इसको दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, I recently started a new job. Then दूसरे वे में लिख सकते हैं, आई स्टार्टेड अ न्यू जॉब रिसेंटली. तो ये रिसेंटली जो एडवर्ब है, ये अलग अलग पोजिशन प्लेसमेंट किया हम लोगों ने सेंटेंस में, अलग अलग जगह लाइक अलग अलग पोजिशन में है. ओके, सेम मीनिंग है बट अलग अलग पोजिशन में एडवर्ब है. इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग. नेक्स्ट है, मेनी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई द इंटायर सेंटेंस एंड नॉट जस्ट द वर्ब. बहुत सा एडवर्ब्स है, adverbs of frequency that modifies the entire sentence. पूरी sentence को modify करता है, not just the verb. Okay, such as frequently, usually, always, often, sometimes and seldom. These adverbs appear in the middle of the sentence after the subject. Subject के बाद ये middle of the sentence में like आता है. जैसे for example, she frequently gets time to herself. Okay, here the adverb appears before the main verb. Main verb के पहले है यहाँ पे adverb. Next example देखो, she has frequently exercised during her lunch hour. Here what happened? The adverb appears after the first auxiliary verb. First auxiliary verb के पहले adverb आया यहाँ पे. Next example है, she is frequently hanging out with old friends. Here the adverb appears after the to be verb. ठीक है, be verb के पहले adverb का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे. थर्ड रूल क्या है? Adverbial phrases work best at the end of a sentence. Adverbial phrases best कहाँ पे position किया जाता है, कहाँ पे place किया जाता है? At the end of a sentence. Okay, for example, he greeted us in a very friendly way. In a very friendly way ये adverbial phrase है. ओके, एंड ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल हुआ, इसका यूज किया हम लोगों ने. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई कलेक्टेड डेटा फॉर 2 months. फॉर 2 months मेरा एडवर्बियल फ्रेज है यहाँ पे. ओके, ये एंड ऑफ द सेंटेंस हम लोगों ने यूज किया. ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू कीप इन माइंड.
ओके, वाइल ट्रांसफॉर्मिंग अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब ट्रांसफॉर्म करते हैं एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो हाउ डू वी डू इट, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हम लोग दिमाग में रखते हैं अपने. Conversion or transformation of a sentence implies changing grammatical form of a sentence from one to another, okay, without changing its meaning. ये हम लोगों ने इससे पहले जो किया था interchange of degrees of comparison में भी किया था. We do transform a sentence but we do not change the meaning. We cannot alter the meaning. Meaning same रखते हुए हम लोग transform करते हैं sentence. ये जरूरी होता है parts of speech में भी. Okay, alright. What are the points that we should keep in mind while transforming a sentence? It can be done in one of the following ways. Okay? 2 ways है यहाँ पे जो like one of the following ways में हम लोग change कर सकते हैं, transform कर सकते हैं sentence, interchange कर सकते हैं parts of speech. The first way is by substituting one part of speech by another. सब्सटीट्यूट करते हुए एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे से. ओके, इसमें क्या है, बाय सब्सटीट्यूटिंग अ नाउन फॉर्म ऑफ अ वर्ड, नाउन फॉर्म चेंज कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. या फिर बाय सब्सटीट्यूटिंग अ वर्ब फॉर्म ऑफ अ वर्ड, वर्ब फॉर्म सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. या फिर बाय सब्सटीट्यूटिंग एन एडवर्ब फॉर्म ऑफ अ वर्ड, एडवर्ब फॉर्म को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम लोग. ओके, दूसरा वे क्या है, बाय कन्वर्जन ऑफ द एडवर्ब टू, TOO2. ये कन्वर्जन ये इस्तेमाल सेंटेंस में इस्तेमाल करके भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं सेंटेंस. देर आर 2 टाइप्स ऑफ सच सेंटेंसेज इन विच द वर्ड टू इज यूज्ड. 2 तरह का सेंटेंस होता है जिसमें ये वर्ड जो है TOO2 इसका इस्तेमाल होता है. ओके, इन द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेज द वर्ड टू इज फॉलोड बाई TO. And in the second type of such sentences, only the word to is used. पहला type of sentences कैसा है, जिसमें TOO2 के साथ कोई word लिखते हैं हम लोग और to इसके बाद follow करता है उसको, alright, sentence में. और दूसरा second type of such sentence कैसा है, जिसमें सिर्फ TOO2 का इस्तेमाल होता है. Okay, alright. Students, we have completed this topic, interchange of parts of speech. ओके, I've explained like रूल समझाया है मैंने तुम लोगों को, और कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, इंटरचेंज कैसे करते हैं एक पार्ट्स ऑफ स्पीच दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से. इन द नेक्स्ट वीडियो वील बी डिस्कसिंग एन एक्सरसाइज, एक सॉल्व्ड एक्सरसाइज. ओके, I'll also explain the sentences to you, and that's it for today. Thank you.